طرف رکشہ موڑ کے, اور وہاں پہ جب بڑی ڈیزرٹڈ سی جگہ تھی اور وہاں پہ خالی پلاٹ پڑے ہوئے تھے, وہاں پر جا کے انہوں نے رکشہ روک کے ان کے ساتھ پھر زیادتی کی. تو یہ بڑی ہی دل خراش بات تھی. بہرحال دونوں ملزمان گرفتار ہیں. تو باقی اگر کوئی کوشچن آپ پوچھنا چاہیں. ان میں سے ایک ملزم ریکارڈ یافتہ ہے, اس کا 2 دفعہ پہلے ریکارڈ ہے ریپ کرنے کا. دیکھیے لگا نہیں, اس میں آپ بتا دیجیے, اس میں ایڈ کیے ہیں. جی یہ جی پہلے پرچہ ہو گیا تھا, اب اس میں 392 بھی ایڈ ہو گئی ہے, اور جو مزید سیکشنز اس میں اٹریکٹ ہو رہے ہیں وہ بھی ایڈ ہو 392 ہے اس میں. دفعات لگ گئی ہیں, اب لگا دی گئی, ایجاد ہو گئی ہیں, ایجاد ہو گئی. نہیں بالکل نہیں, ایجادگی ہو سکتی ہے. سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ نہیں ہے نا, وہ آلریڈی ایف آئی آر کے اندر موجود. وہ پرابلی شاید ٹائپوگرافیکل مسٹیک ہو سکتی ہے اس میں. پریس کانفرنس کیوں رکھی ہے؟ اس لیے کہ یہ ایک بہت اسی لیے پریس کانفرنس رکھی تھی تاکہ ایک انٹریکشن ہو جائے. نہیں, ہم فریکوینٹلی رکھ لیا کریں گے, لیکن یہ واقعہ چونکہ بہت امپورٹنٹ واقعہ اس لیے تھا کہ اس سے پہلے موٹر وے کا انسیڈنٹ جو کہ بڑا آئیڈینٹیکل اور سملر انسیڈنٹ تھا ہو چکا ہوا تھا, اور اس کے بعد ایسے واقعے کا ہونا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی لرزہ خیز بات تھی. تو اس لیے پریس کانفرنس کر کے آپ کو ساری بات خود بتانا جو ہے مناسب ہے. نہیں, وہ 71 سال کا بابا جو تھا وہ غلطی سے آیا تھا, لیکن اس میں آلریڈی دیکھیں جب آپ اتنے میس لیول پہ جب آپ اریسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں غلطی کا امکان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں جس بندے نے غلطی کی اس کو سسپینڈ بھی کیا گیا, اس کے ساتھ ڈپارٹمنٹل ایکشن شوکاز نوٹس اس کے لیے نہیں. وہ جیسے سپرویژن لیول پہ جب یہ بات پتہ چلی کہ معطل بھی کیا اور ان کو شوکاز نوٹس بھی دیا. اس میں چنگچی رکشے کے بارے میں میاں صاحب نے کوشچن پوچھا تھا. چنگچی کوشچن میں اس میں ہم نے کچھ لوگ کسٹڈی میں لیے ہوئے ہیں, صرف چیزیں ویریفائی کرنے کی ضرورت ہے. ایک ہمارا پرابیبل سسپیکٹ ہے اس میں, جس کے بارے میں ہمارا خیال ہے کہ یہ موسٹ پرابلی ہو سکتا ہے, تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. جیو فینسنگ بھی ہم نے مجھے نہیں پتا. ہم نے ایک سیکنڈ ایک اگر پوچھے نا تو ہم نے اس میں لگا دی گئی ہے جو یہ گریٹر اقبال کا شادمان کا بھی مقدمہ آیا ہے, اس میں بھی 509 بھی لگائی ہے. کسی انچارج کو نہیں پتا لاہور کے نہیں جی ایسی بات نہیں ہے کہ انچارج کو نہیں پتا. مختلف کیسز میں 509(2) لگائی گئی ہے, اور جہاں پہ وہ اٹریکٹ ہوتی ہے ہم لگاتے ہیں اس کو. جی لگوائی جو کانوکٹس ہیں یا جن کے اوپر ملٹیپل ایف آئی آرز ہیں ان کی ہم حاضری لگوائیں گے. سر یہ بتائیے گا کہ جہاں پہ واقعہ ہوتا ہے وہاں پہ پولیس کی ڈپلائمنٹ یا تو چیک پوسٹ وہاں پر یہ ساری میری پولیس کی ڈپلائمنٹ یا تو پولیس پکٹس تھی وہاں پر یا تو پیٹرولنگ فورس تھی آن ڈیوٹی. نہیں وہاں پہ تو کوئی ایسا پولیس کی کوئی چوکی نہیں تھی جہاں پر یہ انسیڈنٹ ہوا ہے. بہت بڑا واقعہ ہوا, اس میں پورا ملک جو ہے لیکن اس سے آج وہ
और इससे कमाई जाती है तो इंटरेस्ट आता है, ये भी बड़ा बात है। लेकिन क्यों इंटरेस्ट आता सर मैं जवाब देता हूँ। है बैकवर्ड पे चली गई, क्या बनी गई, क्या वजह क्या? अच्छा डॉक्टर साहब इसी के आप- साथ आप- मैं आप बताएं। डॉक्टर शिफाल साहब एक पता चला है कि सीएम साहब नाराज थे अपने वाले वाक़े में। ये एक्शन होना था जो सीएम की मौजूदगी में फायरिंग से अलग है। यूनुस भाई मुझे पहले उनका जवाब देने दीजिए। तो इसी में ऐड कर रहे हैं सीएम साहब ने उस मौके पे सारे मामला को वक्ती तौर पे रोककर इस वाक़े को इशू बनाते हुए जिसमें डीएजी ऑपरेशन का तो कोई कसूर नहीं बनता, एसएसपी ऑपरेशन का तो कोई कसूर नहीं बनता। वो लड़की को वहाँ बाकायदा किसी ने ट्रोजर दिया है, शर्ट दी है, फिर किसी ने चादर दी है, सब तो थाने भी गई है। इसके बावजूद मुकामी पुलिस स्टेशन की आज तक बात रहती डीआईजी एसएसपी ये हुई वाकयात हुई तो सीएम साहब की मौजूदगी में फायरिंग की वजह से, और इसने सुना है कि और भी अफसर फायरिंग हो रहे थे, आईजी साहब ने बचा लिया। मजीद वेंटिलेटर पे कौन कौन है? मैं रियाज साहब की बात का जवाब दे दूं। ये फरमा रहे थे कि जो दूसरा वाकया था ग्रेटर बार पार्क वाला, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुई? वो इसलिए नहीं हुई कि वो ज़ेर तफ्तीश था। जो चीज़ें अभी पाइपलाइन में होती हैं और तफ्तीश हो रही होती है और उसको मुख्तलिफ उसके पहलुओं को हम जांच रहे होते हैं, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती। ये वाला वाकया जो है इसमें दोनों मुल्ज़िमान गिरफ्तार हैं, इसमें केस जो है वो तकमील तक यानी गिरफ्तारी के बाद अब जो बाकी काम होना है वो बड़ा वाज़ेह क्या होना है, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहिए। क्या साइबर क्राइम के साथ माहौल पुलिस में अटैच नहीं होना चाहिए कि एक ग्रामीण की जहाँ नहीं हुई है नहीं, हम इसमें ये है कि हमारे नहीं, इसमें ये है कि हमारे जो सोशल मीडिया सेल भी है और साइबर क्राइम जो एफआईए की उसके साथ भी रहते हैं, और जो चीज़ें हमारे वो सोशल मीडिया सेल उसको रिजॉल्व कर लेता है वो हो जाती हैं, और जो नहीं होती तो फिर हम साइबर क्राइम वालों के साथ उनकी हेल्प जो है वो मौजूद होती है। जी हाँ, इस वाकये में कुछ संस्थान के सामने ये, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यही वाकया मतलब इससे पहले कुछ वाकया लग रहा है कि देखिए आपकी डीआईजी की आपस में अंडरस्टैंडिंग में इशू आ गया, आपने भी उनके खिलाफ एक लेटर जारी किया जो कि आपके सामने बैठे एक उस पर नाम रहता है, इससे क्या बात हुई है? पहली बात तो ये है कि हमारी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, न थी, ना कोई लेटर लिखा गया था। अगर कोई लेटर है तो मुझे दिखा दें। पहली बात नहीं कोई ऐसा लेटर नहीं है। जनरल इंस्ट्रक्शन लेटर्स तो हम रोज लिखते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिकली इस तरह का कोई लेटर नहीं है, ये मैंने देखा है। दूसरी बात ये है कि आपके सबके सामने ही है कि जो इंसिडेंट हुआ उसी के वजह से लोगों के ट्रांसफर्स हुए या जो हमारे एसएचओ डीएसपी सस्पेंड भी हुए, तो इसके अलावा कोई और वजह नहीं है। वैसे ये बताया गया है जो टक्के वाली वीडियो वायरल हुई थी, जो उसी वीडियो की बात जो है वो एक टक्के वाली वीडियो वायरल हुई थी, वो बड़ी लोगों के दिल में लगी है, बड़ा दुख हुआ है देख के जो रखे ड्राइवर पे आते दुकानों के जो काम करते हैं उसकी तहकीकात ज़्यादा होती है, क्या उसे आइडेंटिफाई कर लिया गया? उसमें वही तो मैं बता रहा था कि उसमें हमने कुछ लोग 2-3 लोग हमने उसमें कस्टडी में लिए हुए हैं, और उसकी बेसिकली इस तरह के जो इंसिडेंट्स होते हैं उसमें शनाख्त परेड ही होती है और वही फाइनल एविडेंस होता है। तो उसमें हमने उनके जो बाकी के शवाहिद इकट्ठे किए हैं उनकी शनाख्त परेड होना बाकी है। बाकी सस्पेक्ट्स हमारे पास हैं, उनके ऊपर तफ्तीश अब कर रहे हैं। अभी काम चल रहा है। और जो तफ्तीशी अफसरान है उनसे तफ्तीश सही हो नहीं पाती, जिसकी वजह से मुलजमान बरी हो जाते हैं। आज भी अगर डाटा चेक कर लें तो 60% जो मुलजमान हमारे है वक्त पे कोई असर नहीं। इसकी वजह यह है कि वो क्राइम डायरी लिखती नहीं आती, जब जज के सामने जाते हैं तो खामोश हो जाते हैं, जज उनको बरी कर देता है, वो बेइज्जती भी अपने जज के सामने करवाते हैं और मुलजमान को भी बरी करवा देते हैं। इसके लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाएं? नहीं, देखें अभी तक जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं यहाँ पर उसमें से ऐसा मौत दिलवाई जो बड़ा वाकया जो हुआ था वो मोटरवे वाला था, उसमें सजाए मौत दिलवाई पुलिस ने। तो बाकी अभी तक ऐसा कोई इस तरह के इंसिडेंट्स नहीं है जिसके अंदर कि इस तरह से कोई 2 दिन के बाद किसी की जमानत, इवेंचुअली तो जमानत होनी होती है, ज़ाहिर है का राइट है, अदालत का ये प्रोगेटिव है, अदालत की ऑनरेबल अदालत का ये प्रोगेटिव होता है। तो यस, लेकिन ये है कि हमारी जो तफ्तीशें तो ज़ाहिर हम पूरी करके ही भेजते हैं जैसे इस्लाम होता है। केस के अंदर जो है 400 में जितने लोग हमला नहीं कर सकते 126 आप लोगों ने पकड़ लिया, मजीद आपके कितने बंदों ने अटैक किया और नाटक का प्रिपरेशन चलती है, आपने कितनी पिक्चर्स दुनिया
آپ کو بتائیں کہ سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ لنگ روڈ طرز پر ماں بیٹی کے ساتھ افسوسناک واقعہ ہوا. پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے.